Hello students, welcome to RS Group of School online classes. Today's topic is acid rain. So let's start this topic. What is acid rain? Acid rain is a result of air pollutions. Okay, when any types of fuel is burned, then lots of different chemicals are produced. Okay, so this is a acid rain. So acid and the another definition is acid rain is the precipitation that has a pH of less than that of natural rainwater, which is about 5.6 due to dissolved carbon dioxide, known as a acid rain. Okay, now it's formed when the sulfur dioxide and nitrogenous oxide as gases or fine particles in the atmosphere combined with water vapors and precipitates as sulfuric acid or nitric acid in a rain form. Okay, so this is a acid rain. It's a very harmful for the to the atmosphere, soil and human beings. Okay, so next is a how do we measure the level of acid is a precipitation. Okay, so acid is main the pH test determine how much hydrogen ions in a liter of fluid is using in a this acid rain. Okay, the acidity is measured using a scale called the pH scale. Okay, and this scale goes from 0 to 18, 0 to 14. Okay, so it's the most measurement of this pH scale. Okay, we can see in this slide 1 to 14 number are pointed in this slide. So this is a pH scale. Okay, 7 number means neutral and the 1 to 6 means acidic and the lower is a basic. Okay, so when the sometimes with a pH of 7, so just we can say that it's a neutral solution and the um, high and the low means acidic and basic solution. Okay, clear? So acid rain is very easily to identify which it's a basic or acid. Okay, so now next main is the causes of acid rain. What is the main cause of the acid rain? So first it's divided in two forms. First one is a natural resource sources and the second one is a human sources. So let's discuss first point is a natural sources. The emissions of the volcanoes and form biological process that occur on the land, in wetlands and in the oceans. Wetland means बैरर एरिया मीन्स जहाँ पे आपका कोई भी किसी भी तरह से फर्टिलिटी नहीं हो पाती है. ठीक है, इनफर्टाइल जो लैंड होती है वो आपके वेटलैंड्स एरियाज में आती हैं. जैसे आपका मरुस्थल जिसे कहते हैं वो आपका इसमें आएगा. ठीक है, and in the ocean contribute acid producing gases to the atmosphere. Effects of acidic deposit have been detected in glacial thousands of year old in remote parts of the globes. Okay, so human sources means the principal cause of acid rain in form human sources, industrial factories, power generating plants and vehicles. Sulfur dioxide and oxide of nitrogens are released during the fuel burning process, that is the combustion. Okay, combustions के थ्रू जो हमारा जो आपका फॉग और जो फ्यूल को हम जब कंबक्शन करते हैं जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है वो क्या करता है, आपके एसिड रेन को एयर को पोल्यूटेंट करेगा. और एयर को जब वो पोल्यूटेंट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, किसे इंक्रीज़ कर रहा है, वो एसिड रेन को इंक्रीज़ कर रहा है. ठीक है, अभी मैंने पहले आपसे डिस्कस किया है कि एसिड रेन को जो आपका एयर पोल्यूशंस होता है इज़ अ मेजर कॉज ऑफ द इंक्रीज द एसिड रेन इन अ एनवायरनमेंट. ओके, एसिड रेन मीन्स अगर नॉर्मली हम बात करते हैं कि आपका
बारिश जो होती है, रेन होती है, उसके थ्रू जो आपके एसिड या हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स में प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, अर्थ से नीचे हमारे एटमॉस्फेयर से अर्थ में आ जाते हैं, तो वो आपकी क्या हुआ जाके एसिड रेन। तो क्लियर। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन की हाउ इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द acid rain. So the main chemical are responsible for the acid rain, that is the sulfuric acid and the nitric acid are soluble in water and are the major acid present in rain. As this form and falls onto the earth's surface, these strong acid are also brought to the surface, causing harmful effect on the built and the natural environment. Okay, so now sulfur dioxide react with the water and form the surface acid. यानी क्लियर है कि SO2 plus H2O gives then the H2SO4. Okay, next the substance in the upper atmosphere then catalyze the reactions between sulfurous acid and oxygen in form sulfuric acid. Now the similarity nitrogen oxide reaction with the water to form a mixture of the nitric acid and nitrous acid. Okay, so now the substance in the atmosphere the catalyze the reactions between nitrous acid and oxygen, causing the formation of more nitric acid. Okay, so the main आपका क्या रहता है कि जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होती हैं वो वाटर से रिएक्ट कर लेती हैं। वाटर कैसे आता है कि वो आपका ड्रॉपलेट्स कंडेंसेशन हो जाता है भी, जो वाटर साइकिल होती है, वाटर साइकिल में वाटर इवोपरेट होकर फिर कंडेंसेशन के फॉर्म में आ जाता है, फिर वहाँ से कंडेंस होने के बाद में जब उसे हीटिंग टेम्परेचर के थ्रू फिर जब वो रेंस में कन्वर्ट होता है तो क्या हुआ, ड्रॉपलेट्स जो वाटर की होती हैं वो वहाँ हमारे अर्थ में जो गैसेस प्रेजेंट है उनसे क्या करेंगे, रिएक्ट कर लेंगे, तो वो रिएक्ट करने से क्या होगा, एसिड रेन का वो फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, मेन फॉर्मेशन ऑफ द एसिड रेन। तो इसमें आप ये देखिए, आप है कि देखिए इसे समझते हैं, ये क्या है हमारा फैक्ट्रीज है, ठीक है ना, फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो हमारा केमिकल बाहर आ रहा है, किस गैसेस आ रही हैं, क्या है, SO2 SOx एंड NOx जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, SO2 एंड NOx। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचती हैं। एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, फिर ये आपके रेन के थ्रू अर्थ पर आते हैं और अर्थ में आने के बाद में ये अर्थ को इनफर्टाइल करते हैं, उससे अफेक्ट हार्मफुल करते हैं, वाटर को करते हैं पल्यूटेड करते हैं, और हमारा एयर तो पल्यूटेड करते ही करता है। तो मीन्स क्या हुआ जाके कि जो एसिड रेन है वो क्या करता है, मेन हमारे जो अर्थ में मेन आपका जो क्या कहेंगे इसको कि तीन जो फॉर्म हो, तीन पोल्यूशंस हैं, एयर वाटर एंड सॉइल, तो इन तीनों पोल्यूशंस को क्या करता है, तीनों पोल्यूशंस को इफेक्ट करता है। ठीक है ना, तो क्या कह सकते हैं कि एसिड रेन जो है ये तीनों हमारे जो पोल्यूशंस होते हैं उनको डायरेक्टली इन्वायरमेंट के थ्रू इफेक्ट डालता है। ओके, सो इसमें फॉर्मेशन ऑफ द एसिड रेन व्हेन वाटर वेपर्स कंडेंस और एज द रेन फॉल्स दे dissolve in the water to form sulfuric acid and nitric acid, while the air is the cleaned for the pollution in the way it also cause the precipitation to become acidic, forming acid rain. Okay, now next affected areas कि आपका जो एसिड रेन है वो कौन कौन से एरिया को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। इन वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो कनाडा एसिड रेन इज प्रॉब्लम इन कनाडा, वाटर एंड सॉइल सिस्टम लैक नेचुरल एल्कलिनिटी सच एज लाइम बेस कैन नॉट न्यूट्रलाइज एसिड। ओके, इन द इंडस्ट्रियल एरियाज में अगर डिस्कस करें कि इंडस्ट्रियल एसिड रेन इज अ सस्टेनेबल प्रॉब्लम इन चाइना, ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया एंड एरियाज डाउनविंड फ्रॉम देम। एसिड रेन from power plant in the Midwest United States has also harmed to the forest of upstate New York and New England. Okay, this show that the effect of acid rain can spread over a large area from the source of the pollutions. तो ओके, सो मेनली जो आपका
सोर्सेस क्या है एसिड रेन का, वो आपका क्या है, दैट इज अ pollution. Okay. Now next is the effects of acid rain. Acid rain is an extremely distracted from the pollution and the environment suffer from its effects. Forests, trees, lakes, animals and plants suffer from acid rain. Okay. Now trees and in the aquatic life, effect on the aquatic life, that is a lake है ना, are also damaged by acid rain. Fish die off and remove the main source of food and birds. Acid rain can even kill fish before they are born while the eggs are laid and come into a contact with the acid. कि मैंने अभी आपको पहले डिस्कस किया कि क्या रहता है कि आपकी जो एसिड रेन होती है वाटर्स की फॉर्म में अर्थ पे आती है, तो अर्थ में किसे इफेक्ट करती है, सॉइल को करती है. तो सॉइल की जो भी प्लांट्स होंगे उनकी फर्टिलिटी सॉइल की होगी, उसको बेयर करेगी, उसको इम्पैक्ट डालेगी. अगर हम लेक्स की बात करते हैं, रिवर्स की बात करते हैं, तो जो वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए वो हार्मफुल हो गई जाके. तो ठीक है ना. तो इस तरह से अब प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स में ऊपर जो लेयर होती है आपकी क्यूटिकल की लेयर होती है उससे डैमेज करती है. जब वो प्लांट की क्यूटिकल की लेयर डैमेज हो जाती है तो क्या रहता है, वो डायरेक्ट आपके स्टोमेटा पे पहुंच जाते हैं उस वाटर की ड्रॉप्स, जिससे क्या होता है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है और वो प्लांट डाई हो जाते हैं. उसकी लीव्स जो होती हैं वो डाई हो जाएंगी और प्लांट्स की रूट को भी वो इफेक्ट करती हैं, तो वो प्लांट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है. ओके. नाउ नेक्स्ट है बिल्डिंग्स की. अगर हम बात करते हैं तो मेन एग्जांपल ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन इज़ अ ताजमहल. ओके. ताजमहल में जो आपका क्या था कि उस एसिड रेन के थ्रू उसका जो कलर था उसमें येलोइश होने लगा था. जो प्योर वाइट था उसके जो टाइल्स संगमरमर के लगे हुए जिससे बना हुआ है ताजमहल, तो उससे क्या हुआ था कि जब ये एसिड रेन अर्थ पर आ रही थी तो उसका इफेक्ट ताजमहल पे आया. तो ताजमहल की जो ऊपर की लेयर थी वो क्या हुई, धीरे डैमेज होने लगी, जिससे वो जो वाइट लेयर थी किस में कन्वर्ट हो गई, वो येलो में हो गया. तो येलोइश हो गया हल्का सा. तो वो मेन रीजन क्या था आपका, वो एसिड रेन का रीजन था. एसिड रेन डिजॉल्व द स्टोन वर्क एंड मोर्टर ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है. इट रिएक्ट्स विद द मिनरल्स ऑन द स्टोन टू फॉर्म अ पाउडरी सब्सटेंस दैट कैन बी वॉश्ड अवे बाई रेन. एक्सक्रीट वेदरिंग इन मेटल्स एंड स्टोन्स स्ट्रक्चर दैट इज द एथेंस, ग्रीस एंड ताज महल इन आगरा. ओके. Now harmful to vegetation. Increase acidity in soil. जस्ट मैंने अभी आपसे डिस्कस किया. लेटेस्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल स्लोविंग प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट करती हैं. टॉक्सिक फ्रॉम सॉइल पॉइजनस प्लांट्स. ओके. क्रिएट ब्राउन स्पॉट इन लीव्स एंड ट्रीज इन है ना. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नॉट प्रॉपर डूइंग इन दिस सिचुएशन and allow organisms to infect through broken leaves. Okay. Now let's discuss what is the impact of the human health. The first one is the respiratory problems, asthma, dry cough, headache and the throat irritations etc. occur in a human. Leaching of toxic from the soil by acid rain can be absorbed by plants and animals. When consumed, these toxins affect human several. Okay. The brain damage, the kidney problems and the Alzheimer means loss of the memory. Okay. Disease has been linked to people eating toxic animal plant through the vegetables है ना and other drinking of the waters. So इसके थ्रू क्या होगा कि वो ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाएंगे. ओके. So now this is the main causes of the acid rain. Okay. So now this topic is completed. Thank you.